Said yesterday that we have what is that pen? S pen उसना क्या था उसका? एक minute. Sir, kindly record. Okay. So we are saying that we were talking about the selectors yesterday. Okay. We will try to actually, we will create the mini projects kind of thing where we learn things. That way we will learn things. That's why I'm teaching a little bit of this this CSS so that we can build those projects. Now in selectors, I said firstly you can use what, a tag. Okay, you can select a tag as a selector and cache that in a CSS like we have here. Um, if you see the style.css, I have taken up the P. Now what is P? P was a paragraph tag. So this is how you target a tag in the CSS. Just write the that name of that tag. Okay. Then we saw the class. We can have a particular class and we can target that class. But class has many tags can have the same class. So this will be applicable to only those guys who belong to this class. But the tag is for each and every tag. So if the p tag, if we have 1,000 p tags, all the 1,000 p tags will have this CSS, right? Then we saw there is a hash. For hash is an ID. This is the third one. So ID is what we can give to the particular tag only, the ID, and we can use the hash to select that particular element only. Okay, and then this was another class that we can add two classes simultaneously, like we did here in the index. ये किस में लगाया था हमने ये what was it, bold something, huh? Yeah, here we have given this p tag the two classes. One is imp and one is bold. So the bold as well as imp, both of the styles will be applied to this guy, right? So we saw many ways we can do the styles, like the tag, the class, the ID, and we can have many classes. And we also saw that style can be applied three ways. Either it will be inline, that if we have a particular tag and we put up the style there as an attribute, okay, this will be inline. And second was that if we have a style and we use it as a tag in the header, you say like style, and then as a tag we can apply here inline, I mean internal to this file, or we can use the external style file, and then we can have a create a file and we can use the styling here. Then we need to link that style here, right, with that HTML. So any file which has a link to this style can access that style. Okay, now there are many more things with the style, like we said we can use the attribute. We can use what? We can use the attribute also to select that tag. For example, we have here header is h1 style is color, p is here. Maybe I will create one more p here. I create a p tag here. Okay, I will say this as attribute selector, maybe. Okay, here in this p tag I will create one attribute maybe called draggable. And I'm not giving anything right now into it.
It can be this draggable can be true or false. Okay, I'm not just creating an attribute called a draggable. Okay, now I can target this p tag. Now if I give it a go and see it, uh, this is attribute selector here coming up right now. The p, which is this one, this p is applied to this also, right? Because p में हमने बोला कि भैया अगर p है तो उसका कलर रेड होगा, फॉन्ट साइज 30 होगा, बैकग्राउंड कलर एक्वा होगा, तो वो हो रहा है सेम, इसको भी अप्लाई। लेकिन अब मैं इस वाले को पकड़ना चाहता हूँ, नॉट यूजिंग द टैग, नॉट यूजिंग द क्लास और दिस, बट यूजिंग द एट्रीब्यूट इटसेल्फ। जो इसका एट्रीब्यूट है, इसका एट्रीब्यूट क्या है? ड्रैगेबल। सो आई वांट टू से हियर कि जो मेरा p टैग है मगर उसमें जो एट्रीब्यूट है ड्रैगेबल, ओके, जिसको ड्रैगेबल है उसको पकड़ो, जिसको एट्रीब्यूट ड्रैगेबल है वो वाले को पकड़ो और इसको डिफरेंट आप कुछ बना दो। जैसे इसका फॉन्ट साइज, इसका मैं फॉन्ट साइज रख रहा हूँ से फॉर एग्जांपल मे बी 40 पिक्सल, थोड़ा मोटा कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, बाकियों से, ओके। और इसका कलर जो है उनका रेड आ रहा था, मैं इसको ब्लू कर दूंगा, ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करूंगा, बैकग्राउंड कलर में भी मैं रखूंगा इसको ब्लैक रखते हैं इसको, ठीक है, ताकि ये दिखे। और इसका मेरे ख्याल से कलर वाइट कर देंगे ताकि वो दिखेगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब आप देखें, ये देखिए इस वाले बंदे में, ठीक है, अब ये उसके साथ मिक्सअप हो रहा है तो हमें लग रहा है कि ये, तो अब चेंज करेंगे, हम इसको कलर रेड कर देंगे, ओके। और बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट रखेंगे, लाइक येलोइश समथिंग, ओके। अब देखिए ये सिर्फ इस पे लग गया, जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर था सिर्फ इस पे ये लग गया, ओके। और क्योंकि मैंने एक एट्रीब्यूट इसको रखा कि जो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे दिया था इसको, हालांकि इट शुड बी समथिंग, ड्रैगेबल शुड बी फॉल्स और ट्रू, अभी मैं सिर्फ एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, तो मैं एट्रीब्यूट से भी पकड़ सकता हूँ। सो आई सेड कि मैंने या तो टैग पकड़ना है, टैग्स एज अ सिलेक्टर, ये सिलेक्टर्स हैं कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे पर्टिकुलर एलिमेंट को इन CSS, या तो सीधे टैग से पकड़ो, या आप क्लास से पकड़ो, या आईडी से पकड़ो। अब मैंने एट्रीब्यूट कहा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है एट्रीब्यूट और वैल्यू की कॉम्बिनेशन, वी कैन कैच देम यूजिंग द एट्रीब्यूट एंड वैल्यू कॉम्बिनेशन, वो नेक्स्ट वाला जो है इसमें। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँगा ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मुमकिन है मेरे पास एक और p टैग है, मैं कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा ड्रैगेबल इज इक्वल टू फॉल्स, इसको, ये वाला फॉल्स है, ठीक है। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो दोनों पे सेम लग रहा है क्योंकि मैं एट्रीब्यूट पे कर रहा हूँ, क्योंकि एट्रीब्यूट ड्रैगेबल इसके पास भी है, इसके पास भी है, ठीक है ना, दोनों के पास ड्रैगेबल एट्रीब्यूट है, ठीक हो गया। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ काम, कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं एट्रीब्यूट और वैल्यू पे, यानी कि जो ट्रू है उसके ऊपर काम करूँगा, फॉल्स वाले के ऊपर नहीं। तो उसका मतलब है कि मैं ये वाला जो काम करूँगा यहाँ पे, मैं कहूँगा ड्रैगेबल इज इक्वल टू ट्रू, उस पे काम करो। तो जब मैं देखता हूँ अब ड्रैगेबल इज इक्वल ट्रू जो है वो ये वाला बंदा है, इस पे हो गया ये काम। एंड यू कुड सी हियर कि अगर मैं इसको खींचूंगा, इसको नहीं खींच सकता, ये सिलेक्शन हो रहा है। और अगर मैं ये वाला हेडर देखूंगा, ये अब ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है, एज यू कुड सी इट्स मूविंग अराउंड, राइट। ये ड्रैगेबल इज इक्वल ट्रू जो मैंने किया ना, उससे ये हो गया कि इट इज़ ड्रैगेबल नाउ, एज यू कुड सी इट्स मूविंग अराउंड। आई कैन मूव इट टू द अदर स्क्रीन, आई कैन मूव इट टू द, आई विल ड्रैग इट somewhere else, I can move it on a desktop, I can move it somewhere else, right? So it is draggable, as you could see, ये draggable नहीं कर दिया इसको, ठीक है। आप मेरे साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes sir, yes sir. एक और चीज अब होती है, that's called specificity, that's called what, that's called specificity, यानी कि जो स्टाइल हम अप्लाई करेंगे, कौन सा स्टाइल अप्लाई होगा। मैंने बताया कि इसमें हायरार्की होती है भाई, इसमें ये होता है कि जो ऊपर आया है पहले वो होगा, अगर उसके बाद नीचे है वो होगा। यानी कि अगर मैं कोई स्टाइल यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे वाला उसको ओवरराइड करेगा, उसके नीचे वाला उसको ओवरराइड करेगा, अगर इसके नीचे है वो इसको ओवरराइड करेगा और वो काम करेगा। यानी कि ये लास्ट वाला जो है वो अप्लाई होगा। हालांकि जो p टैग है, जैसे p पे ये हो रहा है,
तो पी पे ये हो रहा है, पहले पी पे कलर फॉन्ट साइज़ ये चीज़ें हो रही है, लेकिन बाद में मैंने उस जो ड्रैगेबल ट्रू उसके ऊपर पहले जो ड्रैगेबल ट्रू वाला बंदा था, उस जो पहला पैराग्राफ था उसके ऊपर पहले ये स्टाइल होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद ये वाला स्टाइल होगा, तो यानी कि ये अप्लाई होगा और ये ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी, जो कि इस ऑर्डर में भी तरमीम कर सकते हैं, इस ऑर्डर में भी जो है चेंज कर सकते हैं। उसमें पहले मेरे पास आएगा टाइप, कि अगर टाइप होगा मेरे पास, और फिर क्लास, और फिर आईडी, और फिर इनलाइन, यानी कि इनलाइन टॉप पे है, यानी कि इनलाइन स्टैक की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, कि अगर इनलाइन टैग है, इनलाइन आपका स्टाइल है, तो वो ओवरराइड करेगा सबको। कोई भी स्टाइल एक्सटर्नल आपने रखा है, इंटरनल रखा है, आपने क्लास दिया है, आपने आईडी दिया है, या आपने टाइप दिया है सीधे ना, टैग टाइप, तो उसमें जो है जनाब इनलाइन ओवरराइड करेगा सबको, इनलाइन विल अप्लाई, बाकी सब साइड में रहेंगे। उसके बाद जो है वो आईडी काम करता है, यानी कि अगर मैंने एक ही एलिमेंट की दो चीज़ें दी, क्लास और आईडी दिया, और मैंने स्टाइल किया यूजिंग आईडी एंड क्लास, चाहे मैंने ऊपर रखा नीचे रखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आईडी पहले अप्लाई होगा, क्लास बाद में अप्लाई होगा। यानी कि अगर आईडी और क्लास एक ही टैग को, मान लीजिए मेरे पास एक पी टैग है, उसको मैंने आईडी भी रखा और उसको मैंने क्लास भी रखा, कोई चीज़, तो अब मैं स्टाइल कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ क्लास एज वेल एज आईडी, कौन सा अप्लाई होगा, क्लास वाला अप्लाई होगा या आईडी वाला अप्लाई होगा? जनाब आईडी वाला अप्लाई होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, क्लास वाला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्लास है और टाइप है, कि आपने पी टैग दिया है और यहाँ से क्लास दिया है उसका, और स्टाइल कर रहे हो, तो पहले क्लास होगा, टाइप बाद में होगा, ठीक है। बस में आए, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट टाइप बनाएं, लाइक हमारे पास एक ब्लॉग वेबसाइट है, लेट्स क्रिएट अ blog website and we actually learn css, we have to actually learn a lot of things in the css which we need to apply later on. So इसलिए एक ब्लॉग टैब बनाएंगे जिसमें एक हेडर होगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना चाहिए, हेडर कभी प्लेन नहीं होता, जैसे हमने कहा था हेडर फिर नैव होता है, ऐसे ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कोई बंदा जो है नैव ऊपर लगा लेता है, हेडर नीचे लगा लेता है, ठीक है। कभी किसी का हाफ पेज जो है ना हेडर ही होता है, कभी कोई किसी बंदे का हेडर इस तरीके से होता है, इतना सारा जो एरिया है ये हेडर एरिया है, ठीक है। अलग अलग डिज़ाइंस हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है अपने पेज को, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली, जो हमारा फ्रंट पेज होता है ना उसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज, यानी कि जो पेज पहले खुलेगा। लैंडिंग पेज भी आना चाहिए, इसमें एक कला होती है, इट इज़ ए क्रिएटिविटी, यू नो, वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक हो गया। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि मैं अगर सिंपल पहले ब्लॉग एक वेबसाइट बनाना चाहूँगा, उसका हम हेडर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी ब्लॉग में मुझे नैव नहीं चाहिए, उसमें मुझे यहाँ पे जो है एक कुछ आर्टिकल्स होंगे मेरे पास, ठीक है ना। तो ये पहले मेरे पास एक डिव रहेगा जिसके अंदर मैं रखूँगा, हमेशा हम जो है अलग अलग डिव्स में रखते हैं, उससे स्टाइलिंग फिर आसानी होती है, और फिर उसको जो अलग हम उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है, तो इसलिए हम कंटेनर्स में रखते हैं। तो मैंने एक डिव रखना है, उसके ऊपर क्या करूँगा मैं काम, उसके ऊपर एक मेन मैं रखूँगा, यहाँ पे ये मेन टैग मेरा है, ठीक है। और मेन के अंदर मेरे पास आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक हेडर बनाऊँगा, फिर आर्टिकल्स होंगे मेरे पास, यहाँ से मेरे पास एसाइड होगा, इस एसाइड का अपना बाहर डिव होगा और अंदर एसाइड होगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास एक फुटर होगा। दिस इज़, जब आप ऐसे बनाते हो ना यूजिंग द पेन एंड पेंसिल ऑन अ कॉपी, बिकॉज ये पहले जब डिज़ाइन फेज़ होता है तो वहाँ पे ऐसे ही बनता है, फिर हम फोटोशॉप से इस्तेमाल करके या इलस्ट्रेटर करके फिग्मा इस्तेमाल करके हम इसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। फिर जब वो सिलेक्शन हो जाता है, यूज़र कहता है ठीक है, सेट्स पे होता है, उसके बाद वो डेवलपर को चला जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज वायर फ्रेम, दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट, वायर फ्रेम। सो पहले वायर फ्रेम ही बनता है, ठीक है, जो कि कॉपी पेन से बनता है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को करने के लिए हम ब्लॉग साइट बनाएंगे, हम फिलहाल इसके ऊपर काम करेंगे।
एक्चुअली हम लर्न कर रहे हैं CSS की बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू लर्न CSS यूजिंग दिस ब्लॉग। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे, पहले मैं एक यहाँ फाइल बनाऊँगा इसी फोल्डर में। आई विल मेक वन फाइल, है ना। आई मीन फोल्डर बनाऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। बाहर क्लिक करें, यहाँ पे फोल्डर बनाए, कॉल इट इमेजेस। मेरे पास इमेजेस फोल्डर है और index.html है। इसको कमांड A करूँगा, मैं डिलीट करूँगा यहाँ पे सारा। फिर मैं कमांड आई मीन दिस वन एंड गिव इट ए गो, कॉल इट हियर, डॉक्यूमेंट के वजह से कहो माई ब्लॉग। अब ये माई ब्लॉग वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं ये चीज़ें बता रहा था वो हम करेंगे। इसमें वॉइस कमिंग क्लियरली? Yes, sir. Very clear. ओके, समझ आ रहा है ना सबको? CSS भी क्लियर करेंगे ताकि हम नया CSS लगाएंगे। ठीक हो गया? Okay, Okay. sir. Okay. Now we need to go on this thing. We will get some logos and all, ठीक है। जैसे हम कहेंगे logo डॉट PNG, ऐसे कहें logo डॉट PNG। अब हम लोगो बना सकते हैं वहाँ canva वगैरह में। फ़िलहाल यहाँ पे हम सिंपल कोई लोगो डाउनलोड करेंगे, या हम अपना लोगो कर सकते हैं यूजिंग द canva, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैं यहीं से लूँगा कोई लोगो सिंपल सा, अगर हमें होता है यहाँ पे एज ए PNG का जो है उसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, तो इसलिए PNG ही लेना चाहिए। सेव लिंक एज, नॉट लिंक मैन, आई शुड से पिक एज। भाई इसको तो बहुत टाइम लग गया, ये पहले मुझे बताओ ये किस में है मुझे। नहीं HTML हो गया ना, ये हमें PNG करना है। सेव इमेज एज, पहले मैं PNG है कि नहीं है, नहीं AVF है, कैंसिल। हमें PNG चाहिए ना। PNG इमेज दिखा रहा है, मगर सेव करेंगे ऐसे ही सोचना चाहिए कोई सा सेव लिंक, सेव इमेज एज। ये JPEG वाली है, JPEG नहीं चाहिए, PNG चाहिए हमें। ये क्यों नहीं दे रहा अभी? ये डाउनलोड करके रखनी चाहिए थी, ये भी नहीं दिखा रहा। तो canva में हम करेंगे एक चीज़, हम canva ही खोलेंगे। यस, ओपन द canva। डिज़ाइन करेंगे हम, लोगो सर्च कर लेते हैं। क्रिएट ए डिज़ाइन लोगो, ये वाला पकड़ेंगे, इसको एडिट करेंगे, लाइक डिजिटल मेगा ट्रेंड्स, है ना, DM। इसको लिखेंगे यहाँ पे डिजिटल मेगा ट्रेंड्स, व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है। तो ये हमारा लोगो बन गया यहाँ पे। ओके, अगर आपको canva प्रो नहीं है तो आप एक काम करो, आप सीधे canva.com पे जाओ। वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, गूगल में canva.com में आप लॉगिन करो यूजिंग द गूगल अकाउंट, और वहाँ पे आपको आ जाएगा। ये मुझे ऐप है और मेरा प्रो वर्जन है, तो आपको वो आ जाएगा वहाँ पे। तो वैसे मैं ये पिक्चर्स भी आपको सेंड कर लूँगा, तो आपको वो समझ आएगा। शेयर करेंगे यहाँ पे, ओके, और डाउनलोड करेंगे, और PNG दिखाया हुआ ही है, सो डाउनलोड।
ये किस में था हमको ये प्रोजेक्ट, ये है फाइल, एम कार्ड, डॉक्यूमेंट एम कार्ड्स, ठीक। डॉक्यूमेंट में एम में, कार्ड्स में इमेजेस है, वहाँ हम कहेंगे इसको लोगो डॉट png, सेव। ठीक हो गया, तो हो गया ये हमारे सेव। अब मुझे चाहिए एक तो लोगो चाहिए मेरे को, और मेरे को एक इमेज चाहिए। डेवलपर गाय मे बी आई से, एंड आई वांट इमेजेस png इन फैक्ट, हाँ बैकग्राउंड के बगैर चाहिए ना, तो png चाहिए हमको, तो कोई सा भी आप ले लो। मे बी हम ये वाला ले लेते हैं, हाँ ये png है। डॉक्यूमेंट्स एम कार्ड्स इमेजेस, इसका नाम रखेंगे हम dev guy, ओके डॉट png, सेव। एक ये हो गया, एक हम मर्न स्टैक का मर्न png, ठीक है, मर्न का एक png हम लेंगे, जैसे ये वाला देखते हैं ये png होगा कि नहीं होगा। सेव इमेज एज png सेव हो रहा है, और उसने सेम पकड़ा यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम मर्न। तो 3 इमेजेस मेरे पास आ गई, ठीक है ना। गो बैक, मैं इमेजेस में देखूंगा, मेरे पास 3 इमेज है, डेव गाइड, लोगो एंड मर्न, ओके। तो ये 3 इमेजेस आ चुकी हैं मेरे पास, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मेरा हेड है यहाँ पे, ठीक है, और बॉडी है। बॉडी में मैं पहले क्या करूँगा काम, मैं एक हेडर क्रिएट करूँगा। आई विल क्रिएट ए हेडर, ठीक है। ये मेरा हेडर है जिसमें लोगो वगैरह आएगा। पहले मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे एंकर टैग लिखूँगा, ओके href में मैं किसी साइट पे जाता हूँ, मैं यूजुअली जस्ट जो हमारी साइट होगी जहाँ पे जाना होगा, मैं जस्ट सिंपली कहूँगा abc.com whatever, मतलब ये फिर हम अपनी प्रॉपर साइट देंगे जो होगी हमारे पास। और देखो ये एंकर टैग जो होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक यहाँ पे हम कुछ राइट करते हैं, ठीक है, और एक ये लिंक होती है। यहाँ ध्यान दें, आई एम ट्राइंग टू टेल यू एग्जैक्ट बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, कि जो एंकर टैग होता है उसका एट्रीब्यूट है, ये टैग का एट्रीब्यूट है ये href हाइपर रेफरेंस। उसमें ये लिंक जो होती है, और दिखता आपको पेज पे ये है जो आपने यहाँ पे लिखा, जो एंकर क्लोजिंग एंकर टैग जो है, और जो एंकर टैग शुरू है, तो इसके और इसके बीच में जो आप लिखते हो ये क्लिकेबल बनता है यूजिंग द एंकर टैग। और इसको क्लिक करके किधर जाएगा वो ये href बताता है। href will tell us where it will go, right? So got it? अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ये जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो हो सकता है कोई टेक्स्ट, या ये एज एन इमेज भी हो सकती है, कि मैं इसको img टैग लगाऊंगा और इमेज रखूँगा, और उसका सोर्स दूंगा जो इमेजेस में मेरे पास लोगो है, इमेजेस के अंदर जो मेरे पास लोगो है, ये देखिए। अब जो मैंने एंकर टैग के दरमियान अभी जो मैंने कहा था कि एंकर टैग जब आप दोगे, ठीक है, उसके बाद जो href क्या करेगा, जिधर आपको जाना है क्लिक करके जो जिधर जाएगा वो ये वाला चीज़ है। लेकिन जब एंकर टैग क्लोज है और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज यहाँ पर है, यहाँ पर जो आप लिखोगे ये क्लिकेबल बनेगा, ये दिखेगा आपको पेज पे, इसको क्लिक कर सकते हो आप। ये क्लिक करने वाला जो चीज़ है ये टेक्स्ट भी हो सकता है और ये इमेज भी हो सकता है। इस वक्त मैंने इसको इमेज लगाया, एज यू कुड सी दिस वन इज़ बिटवीन, दिस इमेज टैग इज़ बिटवीन, ये जो एंकर टैग यहाँ पे ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, इसके बीच में है। तो ये वाली चीज़ है
जो मैंने कहा कि एंकर टैग अगर मैं href के बगैर लिखूँगा शॉर्ट में, ये एंकर टैग क्लोज है, तो यहाँ पे जो चीज़ होगी वो क्लिकेबल होगी, वो दिखेगी पेज पे। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा टेक्स्ट वही दिखेगा, लेकिन मैं अब टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज डाल रहा हूँ, यानी कि अब ये इमेज जो आपको दिखेगी यही क्लिकेबल बनेगी। ठीक हो गया? बात समझ आई? Yes, sir. सो देखिए, अब जो ये इमेज यहाँ पे दिखेगी, ये जो लोगो है, ये जो दिखा है, हालांकि बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं क्लिक करूँगा, ओके, तो इट शुड लीड मी टू द साइट। अभी फ़िलहाल हो, हाँ गया है, लिटिल स्लो बिकॉज आई एम रनिंग ऑन माई फ़ोन। नाउ एज यू कुड सी इट इज़, मैंने रैंडम दिया था, अब ये abc.com जो एक्चुअली कोई साइट है। abc.com इज़ अ साइट, ठीक है, जिसका नाम है abc.com। ये देखो, इसने लिया हमें abc.com पे। अब अगर आप abc.com ही देखोगे पहले, तो अब आप देखो ऊपर ये सारा इसका हेडर है, ठीक है, और उसमें कैरोजल है, ये आगे जाएगा एज ए पिक्चर, इसका कैरोजल, उसको मैं बाद में करेंगे। अब इसका जो मेनूज़ है आप देखो, ये इसका हेडर एक्चुअली टॉप में है, ये फिर कैरोजल है। यहाँ पे इसने ये मेनूज़ दिए हुए हैं, ब्राउज, लाइव टीवी, न्यूज़, यहाँ से सर्च है, लॉगिन है एंड ऑल दैट। और ये इनका लोगो है ABC का, ये वाला। मैं इसी तरीके से लोगो करना चाहता था, ठीक है, वी विल डू दैट। सो फिलहाल मेरे पास जो लोगो है, इसको हम छोटा करेंगे इसमें किसमें कैनवा में। ये बहुत बड़ा पिक्चर आ गया, इसको छोटा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरा लोगो है, ठीक हो गया। और अल्टरनेट टेक्स्ट हमें लिखना चाहिए कि ये लोगो है, बिकॉज फॉर द एसेसिबिलिटी फॉर ब्लाइंड पीपल एंड ऑल। अगर पिक्चर नहीं लोड हुई या स्क्रीन रीडर वो आल्ट ही पढ़ता है ना, फिर जो मैंने परसों बताया था आपको। सो इस तरीके से मेरा एक ये हेडर बन गया, और उसमें मेरे पास एक क्लिकेबल लोगो बन गया। ठीक हो गया? ये समझ में आई बात? ये अभी Yes, हेडर sir. ये अभी हेडर ही चल रहा है मेरा। हेडर में मुझे खाली लोगो ही नहीं चाहिए, बल्कि मेरे पास एक दो चीज़ें चाहिए। एक तो मैं टेक्स्ट लिखूँगा कि भाई ये मेरा जुनैद्स ब्लॉग है, और एक ब्लॉग, माई ब्लॉग आना चाहिए उसमें, वो भी क्लिकेबल आना चाहिए। ठीक हो गया? दो चीज़ें मैं डालूँगा इसमें। एक मैं इसमें डालूँगा दो टेक्स्ट मेरे पास, एक क्लिकेबल होगा और एक मेरा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होगा कि ये पेज किसके बराबर, ब्लॉग किसके बराबर है, बारे में है। तो उनको मैं, वो दो चीज़ों को मैं कंबाइन करूँगा एक डिव के अंदर, ठीक है, इस डिव के अंदर मैं इनको कंबाइन करूँगा, ठीक है। ओके, सो ये मेरा पी टैग रहेगा, ठीक। पी टैग में पहला जो है उसमें मैं एंकर टैग डालूँगा और कहूँगा href, मे बी आई गो टू http://abc.com, जो भी ना साइट मेरी होगी, बाद में भी मैं रैंडम डाल रहा हूँ कोई साइट, और जो यहाँ पे इस एंकर टैग के बीच में होगा वो दिखेगा और वो क्लिकेबल होगा, तो मैं उसका नाम रखूँगा माई ब्लॉग। तो ये माई ब्लॉग जो है वो दिखेगा और क्लिकेबल होगा। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? मुझे बताना, अगर समझ नहीं आ रहा मुझे बताना, कोई मसला ही नहीं है। लेट मी टीच यू परफेक्टली। सो अगर समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना, रोकना, बोलना सर एक बार फिर से बता दीजिए, कोई मसला ही नहीं है। और एक और टैग है यहाँ पे जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि भाई साहब ये जुनैद्स ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल जुनैद्स ब्लॉग, ठीक है। अभी तो हमारा स्टाइल नहीं किया ना हमने, तो आपको उतने अच्छे से दिखेगा नहीं है क्योंकि हमने स्टाइल नहीं किया, ठीक है। अब ये माई ब्लॉग आ गया और जुनैद्स ब्लॉग आ गया, लेकिन हमें ये जिस तरीके से, अगर आप माई ब्लॉग पे क्लिक करोगे, अगेन इज ए क्लिकेबल टेक्स्ट, ठीक है, इट विल लैंड अस टू द जो है abc.com, ठीक है। बट एज यू कुड सी हियर ऑन द टॉप, जिस तरह ये टॉप में आ रहे हैं ना चीज़ें, जैसे ABC लोगो आ गया, यहाँ पे ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, ब्राउज क्लिकेबल ये है, और यहाँ पे हो सकता है कि जुनैद्स ब्लॉग यहाँ बड़ा सा आना चाहिए, और ये जो है माई ब्लॉग है वो क्लिकेबल होना चाहिए, जिस तरह ये ब्राउज क्लिकेबल है, इसको क्लिक करके कहीं जा रहा है, लाइव टी को क्लिक करके कहीं जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। ये ABC को क्लिक करके भी ये होम पेज पे जा रहा है एंड ऑल दैट। ऐसे ही होना चाहिए हमारे पास, बाद में स्टाइल करके। फ़िलहाल हम CSS इसमें बहुत सारा सीखेंगे इसको लेके। तो मैंने फ़िलहाल हेडर के अंदर मैंने तीन चीज़ें बनाई। एक मैंने लोगो रखा, वो क्लिकेबल बनाया मैंने, तो इसलिए मैंने लोगो को किस में डाला, एंकर टैग में,
ठीक, सिंपल। ये एंकर टैग के अंदर डाला और इसको क्लिक करने से वो कहाँ जाएगा, इस पेज पे जाएगा जो पेज आपको है। उसके बाद डिव में दो टेक्स्ट मैंने रखे, एक माई ब्लॉग एंड जुनैद्स ब्लॉग। एक क्लिकेबल है, ये माई ब्लॉग जो है एंकर टैग के अंदर है, तो इसलिए ये क्लिकेबल बनेगा और ये इसके ऊपर जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो उधर जाएगा। और ये जुनैद्स ब्लॉग है, वो सिंपल पी टैग पे है, ठीक है। ये पी टैग है, इसका अभी मैंने कुछ स्टाइल नहीं किया, बाद में करूँगा। ओके, Yes, sir. हो गया हमारा ये। और एक और चीज़ हमारे पास होगा कि जब मैं ये हेडर ख़त्म करूँगा तो उसके बाद मुझे एक पिक्चर आनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बंदे की, जो ना बंदा मैंने वहाँ पे किया, तो वो मैं एक और ड्यू में रखूँगा। आई विल पुट इट इन अ कंटेनर, ओके। और मेरे पास इमेज है और सोर्स मेरे पास है वो गाय जो मेरे पास है, डेव गाय। ये शुड हैव शोन मी, लेकिन इमेजेस में है ना पहले, ही इज़ इन इमेजेस फोल्डर और वहाँ पे डेव गाय है, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट इज़ डेवलपर, मैं इसको डेवलपर कहूँगा एंड सो ऑन। तो अब अगर हम इसको देखेंगे, ये वापस लाएंगे पहले इधर पे अपने पेज पे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये डेवलपर फ़िलहाल यहाँ पे आ रहा है हमें, ठीक है। अब बाद में इसको अरेंज करेंगे हम CSS से। ये समझ में आ रहा है आपको इतना सारा? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर। उसके बाद हमें बनाना है, क्योंकि हमने कहा कि हेडर, एक तो हेडर होगा हमारे पास, ठीक है, एक तो हमारे पास हेडर होगा, उसमें चीज़ें हमने डाली, फिर अरेंज करना है वो दूसरी बात है, उसके लिए पहले बहुत सारा चीज़ें सीखना है मेरे पास है। और फिर यहाँ पे जो है डिव होगा, उसके अंदर मेन होगा, मेन के अंदर आर्टिकल्स होंगे। एक तो हेडर होगा यहाँ पे इसका अपना और एक आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, और एसाइड होगा और एक फुटर होगा, ठीक है। तो अब हम पहले ये बनाएंगे, ये वाला चीज़ जिसको हम कहते हैं कि ये मेन मेरे पास है, ठीक हो गया। वो इस हेडर के बाहर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास अब कौन सा आएगा कि जो मेरा मेन टैग होगा अब, तो ठीक है। लेकिन मेन टैग में अपने एक डिव में रखेंगे, मेन टैग का अपना एक डिव होगा। हालांकि इस डिव को बाद में हम बाज़ाब्ता क्लास देंगे कि भाई ये डिव मेन का है, ओके। और यहाँ पे मेरे पास मेन टैग है, ये मेरा मेन हो गया। अब मेन के अंदर हम क्या करेंगे काम, मेन के अंदर हम एक पैराग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले हेडर बनाएंगे ना, इसमें पैराग्राफ नहीं, हेडर बनाएंगे हम, इसमें हेडर बनाएंगे हम, ठीक है। और हेडर में मैं क्या काम करूँगा, जो मैं H1 टैग रखूँगा कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें, जो है ये मेन टेक्स्ट किसके बारे में। मैं कहूँगा ये भाई साहब MERN स्टैक डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है। और ये हो गया हेडर। अब हेडर के बाद हमारे पास क्या होगा, आर्टिकल टैग, ठीक है ना। तो आर्टिकल टैग जो मेरे पास होंगे, आर्टिकल टैग में बेसिकली क्या होगा आर्टिकल टैग में कि अब ब्लॉग के बारे में जो टेक्स्ट, मेन टेक्स्ट मेरे पास होगा वो तो इसी आर्टिकल में होगा। आपको समझ आ रही है मैं क्या बना रहा, वायर फ्रेम तो दिमाग में रखे ना आप पहले, कि जो वायर फ्रेम Yes, sir. हमारा है ये हेडर है। अब यहाँ पे जो ये दो हिस्से हैं, इसमें मेन रहेगा और इसमें एसाइड रहेगा। मेन का मैंने अपने एक डिव लिखा और उसमें मेन बनाऊंगा मैं, ये वाला मेन कंटेनर है, और उसमें मैंने हेडर एक दिया जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये MERN स्टैक डेवलपमेंट वगैरह। और उसके बाद आर्टिकल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, आर्टिकल टैग यहाँ पे, एसाइड यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे जाके आर्टिकल बनाने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द आर्टिकल, गड़बड़ किया मैंने कुछ, कंट्रोल से, हाँ ये आर्टिकल है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से आते हैं, पहले ये हेडर हो गया, हेडर यहाँ से यहाँ तक है, उसमें एक लोगो होगा, एक माई ब्लॉग एंड ये होगा, और एक इमेज आएगी। और यहाँ पे जो है MERN स्टैक डेवलपमेंट जो है उसका हेडर है, इस जो आर्टिकल होगा उसका हेडर है MERN स्टैक डेवलपमेंट। मैं अपने ड्यू में रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं पहले इसको बंद करूँगा, ये हेडर बंद करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए ये हेडर हो गया बंद।
अब ये div जो है, ये वाला div, इसमें आपका मेन है, ये रहा मेन आपका, अगर बंद करेंगे ये मेन है। तो मेन के अंदर पहले हेडर मैंने रखा, ठीक है, जिसमें h1 कहा मैंने, और मेरे पास आर्टिकल है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। उसमें इस आर्टिकल में पहले मैं क्या करूँगा काम, मैं एक इमेज डालूँगा इधर, ठीक है, उसका नाम जो है मेरे पास, जो मर्न स्टैक वाली मेरी इमेज है, वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इमेजेस में मर्न स्टैक है मेरे पास, इसको हम डालेंगे, ओके, अल्टरनेट इज मर्न स्टैक पिक्चर व्हाटएवर, आ गया हमारे पास। हाँ जी, आप कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं कर रहे हो? अब यस सर। इसमें फिर जो मेरे पास होगा, बेसिकली मेरे पास पी टैग्स होंगे इस आर्टिकल में, है ना। आई विल हैव द पैराग्राफ्स विच इज़ वी विल राइट इन हियर सम पैराग्राफ्स, सो मे बी आई हैव अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ इनटू 2, ओके। और दोनों को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन हम दबाते हैं यहाँ पे, और आपको आल्ट दबाना पड़ेगा विंडोज़ वालों को, ताकि कर्सर दो जगह आए। आप लिखो लोरेम एंटर, तो दोनों को लोरेम टैग आ गया इसमें ना, पी टैग में, यानी कि हम यहाँ पे जब आ गए तो मर्न स्टैक डेवलपमेंट आ गया है, इसका ये हेडर है, और उसके बाद इसने पिक्चर डाली आपने ये मर्न वाली, और फिर ये लिख रहा है उसके आर्टिकल का। अब हम हमें करना नहीं अरेंज गसना पत गसुन साइडस वाइडस गसुन गो पोतुस, लेकिन फ़िलहाल ये इसने दो आर्टिकल्स लिखे हमने, मानो इसके बारे में जो हम कह रहे थे, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? जी सर। ओके। उसके बाद जो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, ये आर्टिकल 2 हो गया, उसके बाद मैं और एक आर्टिकल दूंगा, फॉर एग्जांपल आई विल से एन आर्टिकल टैग, ये दूसरा आर्टिकल हो गया, इसमें मैं ऑर्डर लिस्ट दूंगा OL, ओके, और मैं कहूँगा LI इंटू 4, 4 ऑर्डर लिस्ट हम करेंगे, 4 ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, इसमें 4 ऑर्डर लिस्ट हम करेंगे। और इन ऑर्डर लिस्ट में मैं बनाऊंगा इनके हेडर और इनका पैराग्राफ, यानी कि 4 लिस्ट मेरे पास हैं। जैसे ये हो गया कि मेरे पास 4 आइटम्स हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर हो, फिर यहाँ पे पहले एक चीज़ आए, उसका हेडर कुछ हो, और फिर उसका टेक्स्ट हो, पैराग्राफ यहाँ पे टैग इसका, फिर दूसरा यहाँ पे लिस्ट हो, उसका हेडर ये होगा टाइटल ना, फिर उसका टेक्स्ट एंड ऑल दैट। इस तरह से 4 आइटम्स मेरे पास होंगे, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग मेरे पास था प्रोग्रामिंग का, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये C प्रोग्रामिंग है, ये C++ प्रोग्रामिंग है, ये जावा प्रोग्रामिंग है। अब C प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ, C++ के बारे में यहाँ डिटेल दे रहा हूँ, जावा के बारे में यहाँ डिटेल दे रहा हूँ। ये ब्लॉग पेज है ना, तो इसमें मुझे काफ़ी सारा टेक्स्ट देना है, तो किसी भी चीज़ के बारे में, और वो मैं ऑर्डर्ड लिस्ट में कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि ऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर आएगा यहाँ पे, और फिर अंदर हमारे पास होते हैं LI टैग्स। क्या होते हैं? LI टैग्स। हमने ऑर्डर लिस्ट पढ़ा था, नो। इसके ऊपर हम वापस आएंगे HTML में, मुझे लगा था हमने ये पढ़ा है, तो कोई बात नहीं। तो लिस्ट जब हम बनाते हैं वो अनऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर लिस्ट सिंपल है कि आपका ऑर्डर आएगा, तो उसके बाद आप जो है इनको एलाइज, यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, आपको समझ आएगा, देखिए क्लियर। हम इसमें कुछ लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमें ऑल्ट ऑप्शन 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 ऑप्शन, तो सारी जगह हमने सेलेक्ट किया। मैं H4 टैग दूंगा, ओके, और एंटर करूँगा, और चारों तरफ मैं कुछ लिखूँगा, प्रोग्रामिंग लिखूँगा मैं, प्रोग्रामिंग। अब डेफिनेटली ये वाली जो है ये C के बारे में है, ये जावा के बारे में है, ये जावा स्क्रिप्ट के बारे में है, फ़र्ज़ कीजिए ये PHP के बारे में है, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे, देखिए ये आ गया
ऑर्डर लिस्ट आ गया, बिकॉज उससे आ गया 1 2 3 4 आ गया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा मैं कैसे ABC लिख सकते हैं वगैरह। तो ये सी प्रोग्रामिंग जावा, ये लिस्ट आ गया। और इस लिस्ट को बनाने के लिए हम OL टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या लगाते हैं? और अंदर हम फिर जो हमें ये इंडिविजुअल जो फिर लिखने हैं, ये प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, ये LI से करते हैं। तो पहले हम जो आउटर टैग हमारे पास है वो क्या लगाते हैं? OL। क्या लगाते हैं? हाँ जी, Ordered list. OL. हाँ, हम उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं। ये सिंपल है, OL लगाएंगे हम, ठीक है। बाहर से OL टैग लगेगा और अंदर फिर जो है वो LI टैग से हम लिखते हैं कि हमें क्या लिखना है। LI जितने जितने हमें लिखने हैं हेडिंग्स, जैसे ये हेडिंग्स लिखनी है हमने, तो ये LI टैग्स में लिखते हैं हम। ठीक हो गया। और इसका फिर नंबरिंग आएगा 1 2 3, और ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बंद होगा। एनी कन्फ्यूजन इन दिस? No, sir. ओके। इसमें हम अब सी प्रोग्राम के बारे में लिखना है ना, कुछ टेक्स्ट जैसे, ठीक है। तो उसको हम पैराग्राफ में लिखेंगे। किसमें? विल राइट दैट इन द पैराग्राफ। लाइक हियर आई विल गो हियर, आई विल कम, ये H4 टैग हो गया, ठीक है। H4 टैग के बाद हम देंगे पैराग्राफ टैग यहाँ पे, ऐसे ना। अब मैं एक काम करेंगे, Ctrl+Z, यहाँ पे मैं ऑल्ट करूँगा, ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन होगा LI टैग के बाद, H4 टैग के बाद, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ टैग, ओके। फिर लिखूँगा मैं लोरेम, ओके। तो अब मेरे पास कमांड S, ये देखिए, अब प्रिटियर, क्योंकि आपने प्रिटियर किया होगा तो वो इसको खुद ही ये करेगा फॉर्मेटिंग। तो देखिए OL जो टैग है, इसमें LI टैग था, उसमें एक तो H4 आ गया जो हेडिंग आएगी मेरे पास, और फिर पैराग्राफ टैग आ गया जो मुझे देगा डिटेल अबाउट दैट प्रोग्रामिंग। जैसे सी प्रोग्रामिंग हो गया तो उसकी डिटेल, जावा प्रोग्रामिंग उसकी डिटेल, जावा स्क्रिप्ट उसकी डिटेल, PHP उसकी डिटेल। अब ये हेडिंग्स जो है वो H4 में हमने रखा और P टैग में इनकी डिटेल रखी। ठीक हो गया? हाँ जी, Ji, sir. Ji, sir. okay. Now let us try to style them up little bit. Okay, let's try to go for the style. So पहली काम ये है कि we can choose the style using what? The tag. Using what? If I choose the P tag, for example, okay, क्योंकि मैं specificity पहले समझाना चाहता हूँ आपको। What is the specificity? ये हमें सीखना है कि what is specificity, और जिसमें मैंने कहा कि पहले आपका इनलाइन होता है, फिर उसके बाद आपका ID होता है, फिर क्लास होता है, फिर टाइप होता है। सो लेकिन इन द मीन टाइम इफ़ वी कैन बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, दैट विल बी अ नाइस थिंग। सो मैं कहूँगा भाई मेरे पास कलर जो है ना, चाहिए मेरे को रेड, यानी कि जो भी पैराग्राफ टैग होगा तो उन सब को लिंक नहीं किया हमने, इसलिए नहीं कर रहा है, हमने लिंक ही नहीं किया ना यहाँ पे। तो हम टाइटल के पास को लिंक करेंगे, लिंक कोलन CSS, तो ये लिंक हो जाएगा। अब देखो जो भी पैराग्राफ टैग है तो वो सब के ऊपर क्या आ जाएगा? हाँ जी, रेड कलर हो गया, वो सबको लगेगा ये रेड कलर। अभी हमें ऐसा नहीं करना है। अब मैं दूसरा चीज़ पकड़ूंगा, जैसे मेरे पास ये H1 टैग है यहाँ पे, मर्न स्टैक डेवलपमेंट, मैं उसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो आई विल से H1, ओके, एंड आई एम सेइंग फॉन्ट साइज से फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, जो मेरा ये वाला होगा, जो H1 होगा। H1 के अंदर क्या है मेरे पास? H1 आप देखोगे यहाँ पे मर्न स्टैक डेवलपमेंट जो हमें दिख रहा है कहीं पे, मर्न स्टैक डेवलपमेंट दिख रहा है कहीं पे, वो यहाँ पे मर्न स्टैक डेवलपमेंट ये वाला आ गया हमारे पास बहुत बड़ा। अब ये H1 से मैंने किया इसको। सो आई एम यूजिंग बोथ द केसेस इन द बोथ थिंग्स यूजिंग द टैग। अब अगर मुझे क्लास करना होगा, क्या होगा करना? क्लास। सो व्हाट आई हैव टू डू, कैन एनीवन टेल मी? अगर मुझे क्लास करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
Asterisk. नहीं, एस्ट्रिक थोड़ी क्लास होता है, एस्ट्रिक मीन्स ऑल द टैग्स। सर इसको नाम देंगे ऊपर क्लास ट्रिब्यूट। क्या करेंगे? सर नाम देंगे जिससे इससे पहले हमने दिया था पिछले वाले वो कोड में। हाँ, हमें देना पड़ेगा ना कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे ये यहाँ पे इसमें जो मेरे पास ये H4 टैग्स है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊँ यहाँ पे डॉट अपर। ये अपर जो मेरे पास है ये एक क्लास है ना, अभी मैंने किसी को दिया नहीं, जिसको मैं दूंगा तो उसको लगेगा ये। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको क्या करूँ कि मैं अपर केस बनाऊँ। उसके लिए मैंने परसों किया था, एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किया था ना, और हमने कहा था अपर केस ऐसे, यानी कि जिसको ये अपर होगा वो क्या बनेगा? अपर केस। मैं चाहता हूँ जो मेरे पास ये है ना H4 टैग्स, ये वाले H4 टैग्स, मैं इनको यहाँ पे क्या लिखूँगा फिर? क्लास। इनफैक्ट मैं एक काम करूँ, मैं सारी ही चाहता हूँ कि अपर केस में आए, सो मैं से ऑप्शन जो H4 टैग जहाँ जहाँ है वहाँ मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे सब पे आए। 3 ही थे क्या? 4 तो मेरे पास थे। सर 1 एक ऊपर है। 2 3 4, हाँ, चारों जगह मैं लिख रहा हूँ क्लास, ठीक है, और लिख रहा हूँ मैं अपर। तो चारों के चारों जो है अब क्या हो जाएंगे? अपर हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्लास इज इक्वल टू अपर, ठीक तो है। ये सेव नहीं था ना शायद। एक सेकंड, कमांड एस, मैंने गड़बड़ किया कहीं पे। क्या गड़बड़ किया मैंने? मैं कहता हूँ कि जो चारों के चार है वो मेरे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस होने चाहिए, है ना? तो ये तो होने चाहिए, UPPER, है ना? कमांड एस में सेव करूँगा ऐसे, फिर देखते हैं। हाँ, हो गया। असल में सेव नहीं था हो रहा था किसी वजह से। तो देखो, सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, ये सारे अपर हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और क्लास दूँ इसको, जैसे डॉट कर्सिव। ये डॉट मैंने कहा तो व्हाट डज इट मीन? सर होल क्लास। तो मैं कर्सिव चाहता हूँ, उसका फॉन्ट फैमिली हमारे पास आता है, फॉन्ट फैमिली कर्सिव। तो जिसको मैं कर्सिव दूंगा, ठीक है, क्लास, तो अगर मैं दूसरा क्लास मुझे करना है तो कहाँ, कैसे लिखूंगा मैं? दूसरा क्लास कैसे करूँगा मैं ऐड? सर हम पैराग्राफ में लिखेंगे, अगर इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा। कहाँ पे लिखेंगे? जैसे क्लास इसको अपर है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कर्सिव भी कर दूँ। सर स्पेस देके सर। यहाँ पे स्पेस देके ना, तो मैं पहले ऑप्शन दबाऊंगा, आप आल्ट दबाइएगा विंडोज़ वाले। यहाँ पे जिधर जिधर मुझे करना है उन सारों जगह पे मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस देके कर्सिव, ठीक है। अब आप जो है ये कर्सिव भी बन गए और कैपिटल भी बन गए, ठीक है, ओके। यस सर। मैं स्टाइल जो है इनलाइन भी कर सकता हूँ, है ना? जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टाइल किया इनको एक तो हो गया इनलाइन, दूसरा हो गया कि इंटरनल, ठीक है ना? इंटरनल इनलाइन में क्या फ़र्क है? इनलाइन में प्रेफरेंस ज्यादा है, नहीं हो, दिखते कहाँ पर है इनलाइन? सर इनलाइन होता है एचटीएमएल में ही, टैग के पास ही। HTML तो ये टैग के सारा पास ही है सर। भाई। तो हाँ, टैग के पास ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, कि हम स्टाइल कर देंगे, लिखेंगे ऐसे स्टाइल एज ए टैग, ठीक है ना? मैं यहाँ पे अगर कहूँगा कि जो मेरा P टैग है उसका कलर जो मेरे पास है वो ग्रीन कर दो, तो क्या हो जाएगा? सबको ग्रीन ही हो गया, है ना? तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो P टैग है, ये ओवरराइड हो गया, है ना? तो जो यस सर। जो यहाँ पे था वो ओवरराइड हो गया। लेकिन अगर हम एक काम करेंगे, हम इंडेक्स यहाँ पे जो है
जो लिंक मैंने किया ना यहाँ पे, क्योंकि पहले मैंने लिंक यहाँ पे किया था, उसके बाद मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, है ना। अगर मैं अब कमांड एक्स करूँगा, मैं लिंक से पहले ये लिखूँगा और जो लिंक है उसके बाद करूँगा। अब ग्रीन होगा, या जो लिंक में मेरे पास था स्टाइल में रेड था, तो क्योंकि ये जो ले रहा है ना इसको स्टाइल डॉट सी एस एस के पास, वहाँ पे रेड हमारे पास है और यहाँ ग्रीन है। अब क्या होगा, रेड या ग्रीन? सर ग्रीन ही तो भी। फिर भी ग्रीन होगा, तो रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी अलग चीज़ है। ये बेसिकली है कि आपने पहले कौन किया बाद में कौन किया, ठीक है। आपने पहले कौन किया बाद में कौन किया, वो चीज़ लग रही है, क्योंकि दोनों टैग्स हैं, इसमें स्पेसिफिसिटी की बात ही नहीं है, क्योंकि ये भी टैग है और ये भी टैग है, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी बात नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक ऐसा नहीं था कि एक आईडी था तो एक क्लास था, ये भी टैग पे ही काम कर रहा था, और ये जो वाला बंदा है यहाँ पे वो भी टैग पे ही काम कर रहा है। लेकिन अब ये जो था कि आपने पहले कौन कलर किया, आपने पहले यहाँ पे ग्रीन कलर किया, उसके बाद आपने ये जब अप्लाई किया यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे, तो इसने इसको कौन सा कलर किया, रेड, तो दिखेगा रेड, ठीक है। तो जो ऊपर होगा वही, जो नीचे होगा वही पहले वो काम करेगा। दिस इज़ द ओवर राइडिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट द स्पेसिफिसिटी। हाँ जी, समझ में आई? यस सर। ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी अलग चीज़ होती है। स्पेसिफिसिटी क्या होती है? असल में ब्लॉग अलग करना ही नहीं चाहिए, पहले हमें स्पेसिफिसिटी एक्सप्लेन करना चाहिए अलग से। अब हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे इसका बाकी जो हमने लिखा वो किधर गया? अच्छा, ये लाइब्रेरी है, इंडेक्स। हम एक काम करेंगे, हम हेड के ऊपर यहाँ पे अलग से थोड़े से पैराग्राफ बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे फिर, ठीक है। पी टैग करूँगा मैं इनटू से फॉर एग्जांपल 4, ये 4 पी टैग आ गए। यहाँ पे मैं कहूँगा पैराग्राफ PH स्टाइल्ड विद टैग सेलेक्टर, ठीक है। और ये कहूँगा मैं लेट मी कॉपी दिस, कमांड C, कमांड V, यहाँ पे कहेंगे हम क्लास सेलेक्टर, और यहाँ पे कहेंगे हम आईडी सेलेक्टर, ठीक है। स्टाइल्ड विद क्लास एंड आईडी है, दोनों चीज़ें होंगी, क्लास भी होगा आईडी भी होगा, ओके। इसमें हम करेंगे, इसमें हमारे पास क्लास भी होगा, आईडी भी होगा और इनलाइन भी होगा। फिर देखते हैं कौन सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास 4 यहाँ पे हैं, ठीक हो गया। इसका ये सिंपल पी टैग है, ये वाला जो है इसका क्लास है आपके पास, क्लास, यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा इसको, क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्लास से फॉर एग्जांपल रेड। ये वाला बंदा जो है इसके पास क्लास रेड है और आईडी भी है इसके पास, आईडी येलो, ठीक है। ये वाला बंदा जो है इसके पास तीनों चीज़ें हैं, इसके पास 3 चीज़ें हैं कमांड, एक तो ये है कमांड C, कमांड V, और इसके पास इंटरनल स्टाइल एट्रीब्यूट है, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट है जो कहता है कि भाई तू कलर जो है ना वो ग्रीन कर दो फॉर एग्जांपल, या एक्वा कर दो, ठीक है। इसके 3 चीज़ें देखें, ध्यान से देखें आप, मैंने बाकियों को गोली मारे, फ़िलहाल इसको बंद करें, बाकी को बंद करें, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर स्पेसिफिसिटी के ऊपर काम करेंगे हम, कि हमने एक ये पैराग्राफ रखा जो कि खाली है, दूसरा पैराग्राफ रखा उसको क्लास से करेंगे, तीसरा पैराग्राफ रखा जिसको रेड एंड येलो
करेंगे, और चौथा पैराग्राफ है उसको क्लास भी है, आईडी भी है और स्टाइल भी है। इनलाइन स्टाइल है, इनलाइन है, इनलाइन का मतलब है वही टैग के पास है। ठीक है ना, बात समझ आई भाई साहब? जी सर, जी सर। यस सर। अब मैं स्टाइल के पास जाऊंगा और मैं देखूंगा कि जो मेरा क्या बोलते हैं इसको, रेड था, क्या था, डॉट रेड क्लास था ना वो, उसमें कलर में कर दूंगा रेड। ठीक है, और दूसरा मेरे पास है, कौन सा है मेरे पास दूसरा, आईडी है येलो, आईडी। यस हैश सर, आई। येलो फॉर एग्जांपल, उसमें मैं कलर कर दूंगा येलो। ठीक हो गया? ओके, दो चीज़ें हैं ना मेरे पास, एक रेड है एक येलो है। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि एक तो रेड आ गया, येलो आ गया, अब मुझे बताइए कि आपको कि जो पहला ये है कौन, हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं को रखेंगे, बाकी जो मेरा है सर वो दूसरी HTML फाइल है। टाइम से बंद, बाकी खाली यही दो रखेंगे। ये वाला जो है मेरे पास, ये हेडर जो है ना सारा, बाकी इसको हम बंद ही कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ तक है सारा, कमांड फॉरवर्ड स्लैश, ये बंद हो गया। अब मुझे बताओ कि ये भी ये वाला भी बंद करेंगे हम, ये स्टाइल है ना इंटरनल, इसको बंद करेंगे, कमांड है सेव इट। तो अगर हम स्टाइल देखेंगे वहाँ पी टैग है, कलर रेड है उसको, है ना। तो जी बाकी सर। बाकी इनकी तो बात ही मत करो, ये जो मेरे हैं अभी इसको, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, ये बंद रखो। ठीक है, मेरे पास तीन ही चीज़ें, एक तो कलर रेड है, और रेड है, क्लास है, और ये है येलो है। अब मुझे बताएं इसको कि इस वाले पैराग्राफ को क्या होगा, इसमें पी टैग है खाली, तो कलर क्या होगा इसका, इसमें होगा वो रेड, इसमें वो रेड। सिंपल सी रेड है। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम इसको, रेड येलो, इसको हम करेंगे कुछ ब्लू। ब्लू, ब्लू हमने नहीं दिया ना कभी, तो ब्लू कर देंगे इसको। तो हम्म। अब जो मेरा पहला पैराग्राफ होगा जो वो ब्लू होने वाला है ना, यस सर। एज यू कुड सी इट्स ब्लू। ठीक है, ओके। यस सर। जो हम बता रहे थे यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार, दैट मीन्स ऑन एवरीथिंग। आई मे से फॉन्ट साइज इज 40 pixel. It will be applied for everybody, right? Now I got a 40 pixels. Now if you could see here, it is blue. Why? Because we have selected it with the P. ठीक है, अच्छा, इसको कौन सा कलर होगा, ये वाला, सीधी सी बात है, क्लास है इसके पास, है ना। तो ये Yes, यहाँ sir. पे दो स्टाइल्स हैं, एक तो P है और एक तो रेड है ना। एक तो P है ना, यहाँ पे P जी। ये वाला है ना P, है ना, हम्म। और एक रेड है। P जी। इसको ब्लू दे रहा है और रेड इसको रेड दे रहा है, तो कौन सा अप्लाई होगा, रेड। रेड अप्लाई होगा। अगर मैं P बाद में लिख दूँ, कमांड तो एक्स, सर इसके बाद मैं लिखूंगा P वाला, पहले मैंने रेड लिखा उसके बाद P लिखा, सर रेड ही होगा। रेड ही हो रहा है। तो इसमें ये चीज़ नहीं चल रहा कि भैया बाद में कौन आया, है ना। जो Yes, हम sir. नॉर्मल अभी देख रहे थे ना कि भैया जो पहले आया तो उसको ओवरराइड हो गया, दूसरा वाला ओवरराइड करेगा। ठीक है ना, इसमें पहले रेड आया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये पहले यहाँ पे क्या आया था, रेड। ठीक, उसके बाद मैंने P ब्लू कर दिया, लेकिन ब्लू नहीं हो रहा क्योंकि इसकी जो क्लास है उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। Yes, sir. इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ज़्यादा ज़्यादा है। यानी कि जो ये वाला बंदा है यहाँ पे, जो ये वाला बंदा यहाँ पर है, कौन सा वाला बंदा, ये वाला बंदा जो है, इसके पास दो चीज़ें हैं। इसके पास एक तो टैग है जिसको हम स्टाइल कर चुके हैं, और क्लास भी है। क्या अब टैग पे काम होगा या क्लास पे काम होगा, क्लास पे काम होगा, क्योंकि क्लास की स्पेसिफिसिटी क्या है, ज़्यादा। तो जो क्लास बताएगा वही स्टाइल होगा। ये पी टैग जो बताएगा, जो टैग बताएगा वो इग्नोर हो जाएगा, चाहे आप ऊपर नीचे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। बात समझ आई?
अच्छा, जी सर। अब मुझे इसका बताओ, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो टैग है, एक तो क्लास है, एक तो आईडी है ना? जी किसकी सर। स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है? आईडी की। आईडी की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, चाहे ऊपर हो नीचे हो आईडी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लास क्यों नहीं नीचे हो, आईडी येलो है तो येलो ही कलर होगा। यस सर। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे तीसरे वाले का येलो कलर है। चाहे आप एक काम कर लो कि आपने एक काम करना है कि आप अगर स्टाइल में येलो आपको लग रहा है नीचे है, इसको आप ऊपर ले जाओ कमांड एक्स, आप ऊपर ले जाओ यहाँ पे कमांड वी। अब देखो पहले येलो किया, फिर रेड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ब्लू हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, येलो ही रहेगा क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। ज़्यादा है। सो आईडी सिलेक्टर जो है वो काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यस सर। और जो लास्ट वाला है उसमें अब कितनी चीज़ें हैं? पैराग्राफ भी, क्लास भी, उसमें आईडी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें पैराग्राफ भी है, इसमें जनाब आपका रेड भी है, क्लास भी है सॉरी, इसमें आईडी भी है, और इसमें इनलाइन स्टाइल है। तो ये सबको गोली मारेगा, इनलाइन स्टाइल की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है, क्योंकि मैंने आपको कहा टॉप में इनलाइन होता है, उसके बाद आपका आईडी होता है, उसके बाद आपका क्लास होता है, उसके बाद आपका टैग होता है। राइट ठीक सर। है, सो Yes, यहाँ sir. पे इनलाइन बाजी जीतेगा, और जो इनलाइन बताएगा वही कलर होगा, एक्वा कलर होगा है बता रहा है, तो एक्वा कलर ही होगा लास्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि क्लास आईडी इनलाइन में इनलाइन जीतेगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी प्रायोरिटी जो ना हम प्रेसिडेंस बोलते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो आपने पढ़ा होगा लैंग्वेजेस में। Preference or you हाँ, can say. प्रेफरेंस प्रायोरिटी ना, जो किसको जी होगा। सर। जैसे जी आप सर। दूल्हे के साथ आए हो, बाराती आओगे, पानी देगा तो पहले किसको पानी मिलेगा? दूल्हे को, दो। तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जी बात सर। समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल यस सर। कंटिन्यू विद दिस। बेसिकली पहले हम अच्छे से ना यही सीखेंगे जो ना ये CSS की चीज़ें, ठीक है ना, सिंपल करके सीखेंगे, फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर जी सर। प्रोजेक्ट में जाएंगे तो उसमें टाइम जाएगा ना बनाने में, और यहाँ से पता नहीं होंगी चीज़ें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी पहले सर। हम CSS की चीज़ें अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, समझ आ रहा है कि कहीं पे कोई किसी को क्वेश्चन? ना ना सर। ठीक, सर चले फिर, हाँ, सर ये दोनों वीडियो अपलोड कर लेना आप। इंशाल्लाह। ठीक है सर।